Hi guys, very good morning to one and all. Please reply in the chat box if everything fine, if I'm audible and visible. Yes, and in next 5 minutes we will start our session, right? Yes, so Hindustani students I can understand Sunday की morning है सर थोड़ा आराम से ज्वाइन करेंगे. Many students are still coming. I think वो लोग अभी भागते हुए आ रहे होंगे. So let's उसका भी वेट कर लेते हैं, right? So guys, please reply in the chat box if I'm audible and visible perfectly fine and everything is going good. Then please reply in the chat box. Okay, okay, Shalini, okay, Rutuja, okay, thank you everyone for the confirming. And yes, in next 2 minutes we will start. So let's join the maximum participants. जितने भी लोग हैं उनको आ जाने दीजिए. Kalpasari, possible, let's check PS sir is join or not. Guys, please, जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, possible you can share this link with your friends and everywhere. Those who are thinking or looking for the such preparation, तो उनको भी help मिल सकती है. Don't be selfish. And yes, in next 2 minutes we'll start the session. Let's join the Prashant sir. Prashant sir एक बार join कर लेते हैं, तो quickly we'll start the webinar here. And okay, Amit, we'll discuss here. Don't worry, beta.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक टाइम का बिल्कुल हमको कदर करना चाहिए, जितने भी लोग टाइम पे आए, बिल्कुल आई रिस्पेक्ट द टाइम एंड एवरीवेयर, राइट? सो लेट्स प्रशांत सर ज्वाइन। आई थिंक आज के स्पेशल डिस्कशन के अंदर प्रशांत सर भी पैनल पे अवेलेबल है, बट आई थिंक सर इज इन क्लास, सो आई आस्क माय अनदर टीम मेंबर कि सर को क्विकली जितना हो सकता है क्लास को कंप्लीट करके सर ज्वाइन करेंगे। एंड meanwhile we'll start the session here, and yes, we have Rakhi madam. So Rakhi madam, please unmute yourself and speak. So let's check audio and everything. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Thank you so much for inviting me. Madam, you are not audible perfectly. So let's. I think Just 1 second. now you are fine. I think. Sir, please check. Now it's clear. Yes, it's clear. I think आप दूसरे Now, को device. now it's clear. Yes. Now I think it is clear, right? So yes, very good morning to one and all. Please reply in the chat box, guys. एकदम energetic morning. Yes, I can see it is the 12. Sunday का 12 बज चुके. I can understand कि सर morning, afternoon, no matters those. जब से जागे तब से सवेरा, right? जब से हम जागे तब से सुबह हो सकती है. So yes, very good morning to one and all. And yes, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, energetic morning I require in the chat box. Everyone. यार हम हिंदुस्तानी, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपना संडे जो फन डे होता है वो बिगाड़ के आप यहाँ पे आए हो एंड इन्वेस्ट योर संडे हियर कि सर व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज द करियर ऑप्शंस, एमबीए क्या होता है, या तो उसके अंदर 99 परसेंटाइल लाना है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपके दिमाग के अंदर तहलके मचा रहे होंगे, एंड बिल्कुल आज उन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स we will listen from our mentors. And yes, we have Rakhi madam, जो अगेन वेलकम मैडम, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर आवर व्यूअर्स एंड ई कोचिंग की ओर से स्टूडेंट की बेhalf से मैं अगेन मैडम आपको थैंक यू करता हूं कि आज संडे के दिन आपने स्पेशल टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए हो। एंड यस, मैडम हैज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी डीप नॉलेज इन द क्वांट। आई थिंक आप लोग ने सेशन अटेंड किए होंगे। मैडम का वैदिक मैथमेटिक्स एंड क्वांट इज वेरी वेरी पावरफुल, राइट? तो आज उन्हीं एक्सपीरियंस को शायद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सर क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या ऑप्शंस होते हैं और उसको कैसे लेवरेजेस ले सकते हैं, राइट? सो यस राखी मैडम, प्लीज बिफोर आई स्टार्ट I would like to ask you to please give yourself your introduction to our student, please. Yes. Sir, first of all, am I audible? My voice Yes, is. you are audible, but bit echo problems ऐसा कुछ I think दिख रहा है मेरे को. Okay. So rest is the fine. Just one second. Let me check. No problem. Take your time, no problem. Now it's clear. Everything, I think now it is clear. It's clear now. Okay, fine. So first of all, my name is Rakhilat, and I'm since 2014 I'm taking the class of quant in different product like CAT and the government exams and CAT and IQMET. So I will take care of the quant section as well as DILR section. And काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए GDPI की प्रिपरेशन में भी I help so much. And आप मुझसे किसी भी कॉलेज के बारे में जो भी आपको जानना है, आपको प्रिपरेशन करना है, definitely I will guide you in the different sector. अगर आपको किसी और चीज के बारे में भी नॉलेज लेना है, देखो अगर आप लोग ऐसा है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, यहाँ पे that's a different scenario. We are the mentors, ठीक है? हम लोग बायस नहीं कि नहीं आप अगर हमारे एडमिशन लेंगे तभी हम आप लोगों को हेल्प करेंगे. We are the mentors, we are the teacher. तो अगर आप आज यहाँ पे आए हो, you can ask, but अच्छा ये रहेगा if we dedicate this session to the CAT preparation, because raise to CAT 99% in the end we will share a number. You can discuss for your future perspective कि मैम हम अभी ग्रेजुएशन में हैं, क्या हमें कैट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो क्यों करना चाहिए, ठीक है? सो आई थिंक I need not to give so much introduction about me, because एक टीचर का इंट्रोडक्शन बस वही है कि वो आपको जब आपको क्लास ले तो आपको मजा आ जाए क्लास में, या फिर आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक अंकुर सर, yes. So thank you. And guys, आप हम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. I have very good discussion and number of the questions we will discuss here. जो I think when I was student, या तो जब मैं आपकी उम्र का था तब मेरे दिल के अंदर या दिमाग के अंदर क्या चल रहा थे, एंड क्या मैं सोच रहा था, एंड उसके बाद इवेंचुअली क्या हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लाए होंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया होगा. डेफिनेटली विल डिस्कस हियर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस. और मेंटर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके भी एक्सपीरियंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बट यस, आपके दिल और दिमाग के अंदर भी कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली चैट बॉक्स आपका है, एंड यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स. डेफिनेटली राखी मैडम को यार मुझे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो. यस,
मैं कोशिश करूंगा, पहले आप भी ट्राई करना कि एंड तक सेशन को जरूर सुन लेना, शायद आपके क्वेश्चंस को हम आंसर दे देंगे। स्टिल आपको लग जाता है कि सर मेरे साथ कोई नाइंसाफी हुई और आपका क्वेश्चन बच गया है, डेफिनेटली यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। उसके बाद भी आपको लगता है कि सर हमको सप्लीमेंट्री की आदत है कि सर हम लास्ट में, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, या तो राखी मैडम भी उनका नंबर एंड ईमेल आईडी देके जाएंगे गाइस। सो डोंट वरी, वी आर विथ यू टिल end of the preparation, right? So madam, my first and very important question is ki whenever we are preparing for the CAT exam, या when we are thinking about the 99 percentile, जो हम I think last 1 week से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आई थिंक हम जो सेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेमेंडस जो फीडबैक मिला था, एंड मेनी स्टूडेंट हैव जॉइन अस, एंड बहुत सारे सेशन जो वर्कशॉप के अंदर आए थे, एंड डेफिनेटली दैट वाज द प्री वर्कशॉप जो 5 डेज के अंदर चलाया था। तो 99 परसेंटाइल के अंदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज कि मैडम क्या क्या चीजों को यहाँ पे कंसिडर करना होगा इन केस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांट LRDI, कि उसके अंदर 99% जब प्रशांत सर आएंगे डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द VRC, बट अभी मेरा क्वेश्चन आपसे मैडम क्वांट एंड LRDI के अंदर 99.99% लाने हैं, तो क्या फैक्टर्स ध्यान में रखना होगा, प्लीज मैडम, ओवर टू यू। सो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बहुत लाजमी है। मतलब ये क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं आता कि हाउ कैन आई सिक्योर द गुड परसेंटाइल टू गेट द एडमिशन इनटू अ गुड बी स्कूल, तब आपकी प्रिपरेशन आप कहीं ना कहीं अपने साथ मतलब सही नहीं कर रहे हो। बिकॉज इफ वी स्टार्ट द प्रिपरेशन तो माइंड में आना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन कैसे मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर डेडिकेटेडली मैं सिर्फ अभी कैट एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो कैट में हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे सेक्शंस की बात की, QA, DILR एंड वर्बल सेक्शन। स्टूडेंट थिंक्स कि ओके वर्बल एबिलिटी वी कैन डू, DILR हम लोग कर लेंगे, बट क्वांट बहुत डिफिकल्ट। बट बीइंग अ क्वांट फैकल्टी मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आपको यहाँ पे कैट के लिए एग्जाम दे रहे हो अगर, तो आपको तीनों सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। इफ यू बिलीव कि आई एम फ्रॉम द CBSE बैकग्राउंड या ICSE बैकग्राउंड या फिर मैं कॉन्वेंट स्कूल का हूँ एंड मेरा वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छा है, मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू आर रॉन्ग, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। बिकॉज जो आप लोगों ने स्कूल में किया है, कॉलेज में किया है, और जो कैट एग्जाम है, ये पूरा एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। कैट में आपका जो वर्बल सेक्शन है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। दैट मींस आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वर्बल एबिलिटी पे क्यों फोकस कर रही हूँ? बिकॉज स्टूडेंट्स पूरे साल ये सोचता रहता है कि उसने अगर 3 आरसीज या 5 आरसीज पर डे सॉल्व किए तो वो कैट को फोड़ देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं 3 आरसी पर डे सॉल्व करके अगर कैट को निकाल सकूं तो ये गलत होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज यहाँ पे जाऊंगी कि आपको किसको इंपॉर्टेंस देना है। पहली चीज, आपको तीनों सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस इसलिए देना है क्योंकि आईएम्स में जाने के लिए आपको तीनों का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। बट ये सेकंड चीज ये है, अगर मान लीजिए इफ आई एम गुड एट क्वांट, तो मैं वहां पे क्वांट में अगर मान लीजिए मेरे वर्बल एबिलिटी में 95 परसेंटाइल आते हैं, DILR में अगर 90 परसेंटाइल आते हैं और QA में अगर मैं 99.99 लेके आ जाऊं, तो इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आई वाज गुड इन क्वांट। तो मैं क्वांट में ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैंने 95 या 80 प्लस तो मुझे लाने होंगे ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज का रिक्वायरमेंट ये है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन पे मैं आऊंगी कि अब मुझे क्या करना है। बच्चे क्वांट में जो आपने 10th लेवल तक का क्वांट किया, यस मैं कहती हूँ कि 10th लेवल तक का क्वांट आएगा, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों ने वो क्वांट सॉल्व किया था स्कूल लेवल में, उस लेवल से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे शॉर्ट अप्रोचेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपके जो 22 क्वेश्चंस आजकल मतलब एज पर द न्यू पैटर्न जो 22 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एटलीस्ट आपको 15 से 17 क्वेश्चन तो मिनिमम करने पड़ेंगे सही क्वेश्चन, जिसमें आपको 99 प्लस लाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आपके पास 40 मिनट्स होता है, तो 40 मिनट्स में ये टारगेट, ये स्कोर लाने के लिए मैं यहाँ पे जब तक शॉर्ट अप्रोच नहीं लगाऊंगी, तो आप सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होंगे। तो या तो आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से सॉल्व कर सकता हूँ, आई नो द शॉर्ट ट्रिक, आई नो द शॉर्ट अप्रोचेस, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको शॉर्ट अप्रोचेस नहीं पता है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप किसी मेंटोर की हेल्प लो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट अप्रोचेस बहुत वर्क करेंगे। राइट, बिकॉज अगर आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए, 10 क्वेश्चंस आपको चलो ठीक है 80 से 85 परसेंटाइल तक लेके आएंगे, लेकिन जो रेस है 99 वाला जो रेस है, उसमें आपको जो प्लस 4 या +5 क्वेश्चंस करने होंगे, वो आपको किसी शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट अप्रोचेस की हेल्प से ही आप वहां तक पहुंचोगे।
सेकेंड सेक्शन में अगर DILR की बात करूं तो DILR सेक्शन में ये कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन है एंड इट्स इक्वल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इफ यू बिलोंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, ये सबके लिए कॉमन है बिकॉज इट्स अ वेरी लॉजिकल पार्ट और इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। मीन्स पहले आपने, क्योंकि आपका यहाँ पे जो टीचर है वो आपको आपके लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने से ये सेक्शन क्लियर नहीं होगा, आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि स्टार्टिंग में लॉजिक बिल्ड करो एंड देन डेली आप कम से कम 3 to 5 स्टेप्स अगर आप सॉल्व करते हो ऑन द रेगुलरली बेसिस, ठीक है, एक दो बार गैप आता है हफ्ते में फंक्शन है, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन ऑन द रेगुलरली बेसिस इफ यू सॉल्व 3 to 5 steps पर डे एट द कैट लेवल, देन डेफिनेटली यू कैन सिक्योर द गुड परसेंटाइल इन दिस सेक्शन। एंड ये सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पे एक कॉमर्स वाला, एक ह्यूमैनिटी वाला स्टूडेंट बीट कर जाता है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले ने पहले से किया हुआ है या फिर BBA वाले स्टूडेंट ने पहले से किया, सबके लिए इक्वल। लेकिन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी। क्यों वर्बल एबिलिटी? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ द रीडिंग। आई वुड सजेस्ट आज के सेशन में मैं आपको बार बार फोकस करके बोल रही हूँ, आपका वर्बल कैसा भी हो, लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एटलीस्ट आप यहाँ पे 1 hour डेली रीडिंग पे इन्वेस्ट कीजिए। मैम क्या रीड करें? यू कैन रीड एडिटोरियल, यू कैन रीड नॉवेल्स, बुक, जर्नल, जो भी आपको अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में जो भी आपको अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में मैंने ऐसा क्यों बोला स्टार्टिंग में, इफ आई हैव इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स, बट अगर मैं डेली सिर्फ पॉलिटिक्स के ही एडिटोरियल्स रीड करती हूँ, बट कैट तो कुछ भी पूछ सकता है ना, जैसे कैट में न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल आ सकता है, किसी एनवायरमेंटल इशू पे आ सकता है, बायोलॉजिकल इश्यूज पे आ सकता है, ठीक है, किसी भी इशू पे आपका एडिटोरियल आ सकता है। तो डिफरेंट जॉनर्स को आपको टच करना है। मिनिमम 1 hour और मैक्सिमम नो लिमिट फॉर रीडिंग। अगर आप लोग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन अप्रैल मंथ, दैट मींस अगर आप मई मंथ से स्टार्ट करते हो एंड यू आर वीक और यू आर एवरेज इन वर्बल सेक्शन, देन एटलीस्ट 2 to 3 hours सिर्फ डेली रीडिंग करो। आपके जो आरसी है वो आप बाद में सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द अगस्त मंथ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर आप 2 to 3 hours डेडिकेट करोगे देन डेफिनेटली आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप एवरेज हो इंग्लिश में, चाहे आप एक्सीलेंट हो, आपका ये सेक्शन रीडिंग से ही हेल्प करेगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का वो होता है कि मैम हमने पहले कभी रीडिंग नहीं की, हमने नॉवेल्स नहीं किए, तो बच्चे यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट एरिया का नॉवेल पिक कर लो। सस्पेंस हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, लव स्टोरीज हो सकती है, वहां से स्टार्ट करो एंड देन बिल्ड योर रीडिंग स्किल्स, बिल्ड योर रीडिंग हैबिट्स। क्योंकि जब तक आप कॉम्प्रिहेंड करना नहीं सीखोगे, आप क्वांट में भी मार खा जाते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। कई बार हमें क्वांट का कंसेप्ट पता होता है, बट हम लैंग्वेज में मतलब फंस जाते हैं, ट्रबल होता है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एंड स्पेशली इन द DILR सेक्शन में आपका कम से कम कुछ सेट ऐसे होता है जो 250 to 300 वर्ड का एक LR का सेट हो सकता है, जिसमें कुछ चीजें फालतू की होती है, बट यू हैव टू इंटरप्रेट दैट डेटा, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूँ चीजों को, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है। आप यहाँ पे रीडिंग देने का आज से सोच लो कि इस सेशन के बाद मैं न्यूज़पेपर रीड करूंगा, नॉवेल्स रीड करूंगा। सेकंड थिंग, मैं अपना क्यूए सेक्शन में अगर मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, इफ आई डोंट नो द शॉर्ट ट्रिक, आई विल हेल्प, I take the help from the mentor, and DILR सेक्शन में भी मैं किसी की हेल्प लेके यहाँ पे DILR सेक्शन स्टार्ट करूंगा एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन as soon as possible. There is no right time to do the right things. Okay? So I think आपको yes, थोड़ा yes. Thank you, madam, for your great discussion and detailed discussion about the percentile. And yes, now I think Prashant sir has also joined us. And yes, again, welcome sir from all the students in e-coaching. behalf of the मैं आपको सर again thank you करता हूँ कि आप, I think I can understand कि सर आप क्लास में से भागते हुए सेशंस के अंदर आए, I can understand. So no problem, and still आप, I can see your energy, and उसके साथ I hope कि आप सर हमारे बच्चों को उन एनर्जी के साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड यस गाइस, प्रशांत सर नॉन एज अ फिनोमेनल फैकल्टी VRC के लिए जो जाने जाते हैं। एंड सर यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था कि 99 परसेंटाइल लाना है, राइट, तो उसके अंदर कौन से सेक्शन के अंदर क्या चीज कंसिडर करनी चाहिए, जो उनके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। सो सर अगेन माय क्वेश्चन टू यू कि सर बहुत बार आई हैव
heard from the market or from the student कि सर VRC सबसे पहला सेक्शन होता है, राइट, एंड उसके बाद LRTI एंड लास्ट में कॉन्ट जो सबका प्यारा होता है, वहां तक सर स्टूडेंट पहुंचते तो शायद दम तोड़ देता है। तो सर VRC को कैसे टैकल करें, प्लीज सर। Okay, a very good morning to one and all. Good morning, Rakhi ma'am. And I think I am very happy. जहाँ राखी मैम वर्बल एबिलिटी की बात कर रहे तो पहली बार वर्बल एबिलिटी को इतनी इज्जत दी गई है. सो आई वाज वेरी हैप्पी लिसनिंग टू ऑल द थिंग्स बिकॉज शी इज राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि वर्बल एबिलिटी को ना बहुत ही सौतेला व्यवहार मिलता है, राइट. द रीजन सौतेला व्यवहार मिलने का रीजन क्या है, एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर सेशन, कि कॉमर्स स्टूडेंट तो वैसे भी डरा हुआ रहता है कि मैथ्स मेरे से होगा नहीं. वो पूरा साल क्या करता है, वो पूरा साल मैथ्स करता है. इंजीनियर स्टूडेंट वैसे डरा रहता है कि मेरे से वर्बल होगा नहीं, वो पूरा साल क्या करता है, वो भी मैथ्स करता है बिकॉज उसको आता ही वही है, राइट. अब पॉइंट इज सौताला व्यवहार मिलता है वर्बल को, राइट. अब जो राखी मैम बोल रहे थे, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट वर्बल विल बी मेक और ब्रेक सेक्शन फॉर यू गाइस, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज आपके ओवरऑल परसेंटाइल बढ़ाने के लिए वर्बल काम में आता है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्वांट छोड़ दो, बिकॉज राखी मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन यहाँ पर किया था दैट अगर मेरे को टॉप आईएम्स, बिकॉज हम यहाँ 99 परसेंटाइल्स की बात कर रहे हैं, अगर मुझे टॉप आईएम्स या अगर मुझे 99 परसेंटाइल लाने, और 99 परसेंटाइल क्यों चाह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे को ईगो सेटिस्फाई करना है, मुझे टॉप आईएम्स के अंदर जाना है, टॉप कॉलेजेस के अंदर जाना है. अब वहां पर सेक्शन वाइज परसेंटाइल होगा और ओवरऑल परसेंटाइल होगा. पहली बात सेक्शन वाइज परसेंटाइल है, मुझे बराबर टाइम सबके अंदर देना है, राइट. अब पॉइंट इज मुझे वर्बल एक ऐसा सेक्शन है जो आपके ओवरऑल परसेंटाइल्स को ऊपर बढ़ाता है. जो ओवरऑल परसेंटाइल है वर्बल की तरफ से आएगा, बिकॉज द पॉइंट इज जो मैम बोल रहे थे, क्वांट्स के अंदर एलआर के अंदर अगर वो इंटरप्रेट हो गया, अगर सेट टफ है तो मेरे ख्याल से सबके लिए टफ है. सो हम लोग जैसे ही देखते हैं कौन से क्वेश्चन कौन से सेट में करके आए, तो बहुत ही एक जेनरिक सा आंसर मिलता है. 4 सेट्स थे, जैसे मैं पिछली बार की बात बता रहा हूं. सो 4 सेट्स थे, 10 डीआई 10 एलआर के क्वेश्चंस थे. हमें ये 2 सेट करने चाहिए थे, 99 परसेंटाइल पे हम लोग बैठ जाते. ये सबके लिए सेम रहता है. नाउ व्हेन यू गो टू द पैसेजेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कि ये पैसेज करते या नहीं करते, बिकॉज इट इज रैंडम. मेरा ये सही हो गया, मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये सही हो गया, मेरा ये गलत हो गया, पैरा जंबल्स मैंने ये किया नहीं किया, इट इज वेरी रैंडम. So very important कि verbal आपका overall percentile बढ़ाएगा. That is point number 1. Second thing, when we are talking about 99 percentile की जहां बात करते हैं, you can't afford to miss out on any of the things, right? Be it verbal, be it LR, be it quantitative aptitude, be it arithmetic, be it algebra, be it geometry, modern mathematics, higher mathematics, you can't miss out on any. But yes, you should be very shrewd कि मेरे को मेरा टाइम कहां लगाना है, राइट. सो तुम्हें जब फैकल्टीज क्लास के अंदर आएंगे, आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स राखी मैम कमिंग इनटू द क्लास एंड टॉकिंग अबाउट कि बच्चा लोग तुम ये 4 चैप्टर्स तो कर सकते हो या नहीं, तब भी तुम 80 परसेंटाइल पे तो बैठ जाओगे. तुम्हारी जर्नी 80 से तो शुरू होनी चाहिए, ना कि 25 परसेंटाइल से, राइट. व्हेन वी टॉक अबाउट वर्बल के अंदर द मेन आइडिया इज, जो मैम बोल रहे थे, रीडिंग करो. और रीडिंग कहां से करो, जो मैम बोल रहे थे, एडिटोरियल्स पढ़ो. सो द पॉइंट इज आपको आरसी नहीं करना है, मत करो आरसी. मैं बता रहा हूं, अगर तुम आरसी सॉल्व नहीं करोगे, आखिरी 30 दिन भी अगर तुमने आरसी सॉल्व कर दिया बहुत है, बट उस 30 दिन से पहले 5 महीना रीडिंग जरूर करो, राइट. रीडिंग पे आप हाथ नहीं छोड़ सकते. आपको एवन एसेस पढ़ना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने जो एवन एसेस का आर्टिकल भेजा था वो 3000 वर्ड्स का था, वो इसीलिए भेजा है बिकॉज मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से क्या क्या वर्ड सुने, सर हम ना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं. मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं यार. वो मेंटली एग्जॉस्ट तो इंस्टाग्राम की रील बनाते वक्त तो नहीं होते, वो 3 घंटे की मूवी देखते वक्त तो नहीं होते. वो मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होना है. जो मैम अगेन बोल रहे थे, मैं उसी को आगे वो कर रहा हूं कि नेक्स्ट मैम ने बोला अपना स्टार्ट करो अपने इंटरेस्ट एरिया से, कोई दिक्कत नहीं है. स्टार्ट विद योर इंटरेस्ट एरिया. जो लोगों की रीडिंग की हैबिट नहीं है वो इंटरेस्ट एरिया से स्टार्ट करें, और जिन लोगों की रीडिंग हैबिट है, फिक्शन वगैरह पढ़ते हैं, द टॉपिक विच यू हेट द मोस्ट वहां से स्टार्ट करो. बिकॉज जिन लोगों की रीडिंग हैबिट्स हैं वो ये समझे कि वहां पर पैसेज आएगा फिलॉसफी के ऊपर, वहां पर हालत खराब हो जाएगी. वहां पैसेज आएगा कोहर्जन के ऊपर, वहां पैसेज आएगा समथिंग ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पर पैसेज आएगा समथिंग ऑन आर्बिट्रेशन, वहां पर पैसेज आ सकता है समथिंग ऑन एपिस्टेमोलॉजी, वहां पर पैसेज आ सकता है समथिंग ऑन XYZ थिंग्स जो हमें नहीं पता हो, राइट. एंड जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप रीडिंग बेसिक से शुरू कीजिए. शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ सर ने बोला इंडियन एक्सप्रेस तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से कैसे स्टार्ट करता हूं. सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी एज फार एज वर्बल इज कंसर्न, और आपका वोकैबुलरी वगैरह तभी इंप्रूव होगा आप जितनी रीडिंग करेंगे उसी के साथ साथ. सो मेरा सजेशन आप लोगों से है कि वोकैबुलरी बुक खरीद लीजिए बेसिक्स अगर खरीदनी है तो, वरना रीडिंग इज समथिंग व्हिच यू स्टार्ट. दिन का 2 घंटा रीडिंग और साथ में आपकी राइटिंग, ये 2 चीजें विल टेक यू टू 99 परसेंटाइल फॉर श्योर. ओवर टू यू अंकुर सर.
So yes, so I think काफी हेल्दी डिस्कशन यहाँ पे हुआ इन टर्म्स ऑफ 99 परसेंटाइल एंड सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैट बॉक्स के अंदर आई थिंक आग लगा रहा है कि सर क्या अभी भी कैट 2022 के लिए राइट टाइम है? तो आई थिंक कई सारे स्टूडेंट का चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आया है, उसमें से कई क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पिकअप कर रहा हूँ एंड फ्रॉम दैट वन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर अभी भी कैट 2022 को हम क्या टारगेट कर सकते हैं? इज इट राइट टाइम और नॉट? प्लीज सर। देखिए आपके पास रफली 6 महीना है, ठीक है, आपके पास 6 महीना है। मैं वर्बल में बताऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैम मेरे को पॉइंट्स में हेल्प कर देंगे और एलआर में हेल्प कर देंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट 6 months ओवरऑल, वी आर टॉकिंग अबाउट 30 days, राइट। और मैं बोलता हूँ दिन के, मैं अगर अपन और नहीं तो बहुत बेसिक मिनिमम अगर मैं बोल रहा हूँ 5 घंटे, अगर आप ये दे सकते हो तो सफिशिएंट टाइम है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 6 into 30 into 5 150 into 6, हम लोग 900 आवर्स की बात कर रहे हैं। राखी मैम सही बोला, 900 होगा 9000 होगा 900 आवर्स, राइट। सो हम रफली 900 आवर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप ये 900 घंटे दे सकते हैं, बहुत होते हैं 900 घंटे। मुझे वर्बल के लिए आप लोगों से सिर्फ क्या चाहिए, 6 into 30 into 2, बस मुझे आप ये दो चीजें दे दीजिए, उसके बाद राखी मैम आपको हेल्प कर देंगी। तो मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ 300 घंटे के आसपास चाहिए करने के लिए। राखी मैम ओवर टू यू, पॉइंट्स और एलआर के लिए क्या बोलते हो? ये सर मुझे वो मार्कर। श्योर, यस मैम, यू कैन शेयर नाउ मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे स्टूडेंट्स ने बोला कि लाइक अभी सफिशिएंट टाइम है या नहीं है। सबसे पहले चीज, ये आपका स्कूल का सिलेबस नहीं है, ये आपका 11th-12th का सिलेबस नहीं है जिसको 2 साल की जरूरत होगी। यहाँ पे आप किसी एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब आपको पूरा जो मैथ्स है यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस वाइज जाएंगे, बिकॉज यू हैव टू नो कि आपका अगर लॉग से क्वेश्चन आता है, मैं अपने क्यूए सेक्शन की बात कर रही हूँ कि लॉग से हर बार एक क्वेश्चन, जैसे जब हमारे पास में क्वांट में टोटल क्वेश्चंस ज्यादा होते थे तब हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चंस आते थे लॉग से 3 क्वेश्चंस। अभी 22 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। दैट मींस आई नो कि इस चैप्टर से पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दैट मींस मुझे चैप्टर करना ही करना है। अगर आप बोलते हो कि अरिथमेटिक में आपके टोटल 22 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं, दैट मींस मुझे अरिथमेटिक यहाँ पे कवर करना ही होगा, मैं इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकती। बट अरिथमेटिक में कितने टॉपिक्स हैं? देयर आर टोटल 10 टॉपिक्स, जहाँ पे आपको बेसिक मैथ्स है, जहाँ पे आपका 8-9 स्टैंडर्ड का मैथ्स है, लाइक वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मींस आपको यहाँ पे टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझते हुए कवर करना है सिलेबस। और अगर आप यहाँ, बिकॉज अगर मुझे पता है कि टोटल 22 क्वेश्चंस में से मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं 17 क्वेश्चंस का टारगेट कर दूं तो मेरा आराम से 99.6 प्लस तो परसेंटाइल बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका टारगेट 22 क्वेश्चंस करने का नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द 100% पेपर, ठीक है। और ना ही आप सारे क्वेश्चंस वहां पे कर सकते हो। तो अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाए तो यस डेफिनेटली जो आपके पास 5 to 6 months का टाइम है, इवन तो अगर इसमें से आप 15 days इधर उधर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाते तो भी ये इनफ टाइम है, बट विद द प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, 3 दिन का गैप ले लेता हूँ, 2 दिन एग्जॉस्ट हो गया हूँ, आज सामने फंक्शन में जा रहा हूँ, अभी दिवाली आने वाली है, गरबा आने वाला है। दैट मींस अगर आप इस साल का दिवाली भूलने के लिए तैयार हो, तब आपके पास नवंबर का जो लास्ट संडे है वो आपको रिजल्ट दे देगा, डेफिनेटली दे देगा। बच्चे 5 to 6 months इज रियली एनफ, ठीक है। हम तो हर साल प्रिपरेशन कराते हैं, हर साल स्टूडेंट्स रिजल्ट भी देते हैं, तो आपके पास ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ। बट उसके साथ मेरा जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है, विद द प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है, आपके पास रेगुलरली आपको स्टडी करना पड़ेगा। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो इट्स ओके, लेकिन एक चीज और है, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स। जैसे सर ने वर्बल में बोल दिया कि आरसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सेम केस में क्वांट में बोलती हूँ कि अरिथमेटिक को मिस करके आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एंड अगर मुझे ये इंपॉर्टेंस पता है तो मैं यहाँ पे अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करने जाऊंगी। अब मुझे पता है कि ज्योमेट्री से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, और इफ आई एम वीक इन ज्योमेट्री तो आई कैन कंपनसेट ज्योमेट्री विद अलजेब्रा, ठीक है। तो अगर आप ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी करते हो तो यस डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, रेस टू कैट 99 की रेस में आप आ सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे डीआईएलआर सेक्शन की बात करते हैं तो डीआईएलआर सेक्शन में है एक डीआई और प्लस एलआर, ठीक है। आजकल जो ट्रेंड है वो डीआई थोड़ा कम पूछा जाता है, एलआर के सेट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप एलआर को
ऑब्वियसली लास्ट के 3 मंथ्स में, वैसे तो अभी से ही करना है, ऐसा नहीं सोचना मैम ने तो लास्ट के 3 मंथ्स बोला तो हम लास्ट के 3 मंथ से एलआर स्टार्ट करेंगे, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, अगर आप लास्ट के 3 मंथ्स में भी रेगुलरली 3 to 4 सेट्स एलआर के करते हो तो आप 110% बहुत अच्छा स्कोर एलआर में कर सकते हो। बिकॉज अगर उन्होंने मान लीजिए आपसे 5 सेट पूछा और अगर आप 3 सेट भी कंप्लीटली सॉल्व करते हो तो आपके 98 प्लस 99 अराउंड आपका कोई भी परसेंटाइल कहीं पे नहीं गया। जस्ट नो द अंडरस्टैंड परसेंटाइल एंड परसेंटेज, आपको पूरा पेपर नहीं सॉल्व करना, आपको परसेंटाइल लाना है। बट अगेन हिडन टर्म्स एंड कंडीशन विद द प्रॉपर स्ट्रेटजी यू कैन डेफिनेटली सिक्योर द गुड परसेंटाइल इन दिस 6 मंथ। एंड कोई भी टाइम लेट नहीं होता है, लेट होने वालों के लिए तो 2 साल भी कम हो जाएंगे और प्रिपरेशन करने वालों के लिए 5 महीने की काफी हो जाएगी। ठीक है, और मैं लास्ट में अंकुर सर, मैं आपको लास्ट में एक एक्सेल शीट शेयर कर दूंगी जो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब शेयर कर सकते हो, जिसमें हर एक टॉपिक से एवरी कितने क्वेश्चन पूछे गए इन द क्वांट। Definitely. And by the way, madam, that is my next question. So, Prashant sir, again मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टूडेंट के बीच में चल रहा है, that is a very very important topic. Question is कि good कि फॉर एग्जांपल हमने सर डिसाइड कर लिया है कि सर 99 परसेंटाइल लाना है, टॉप स्कूल के अंदर जाना है सर, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, राइट। एंड जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि स्टिल वी कैन, राइट, अभी भी टाइम है कि सर हम कर सकते हैं, कोई भी लेट नहीं हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो यस, अब सर अगला क्वेश्चन ये है कि सर आप थोड़ा हमको मदद करिए, या तो सर आप बताइए कि हमारा स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए सर, क्या हेक्टिक शेड्यूल वी हैव टू फॉलो कि जिसके अंदर हम केट के अंदर अच्छा परसेंटाइल लाए सर। वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द 50 परसेंटाइल, वी आर टॉकिंग अबाउट द 99.99 परसेंटाइल। तो उसके लिए क्या मॉर्निंग में उठने से लेके सर रात को सोने तक क्या क्या चीज फॉलो करना होगा व्हेन यू गाइस आर द स्टूडेंट, या जब यू आर द स्टूडेंट, या तो अभी जब हम स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन या तो गाइड करेंगे तो सर क्या फॉलो करेंगे स्केड्यूल, प्लीज ओवर टू यू सर। Okay, thank you. So see, the point is when we talk about a study planner, जहाँ हम study planner की बात करते हैं, let me elaborate few of the things for you guys. Again, for a 99.9 percentile की हम बात कर रहे हैं. So you can't go away with reading at least 2 articles, right? You can't go away, मैं पहले verbal की बात कर रहा हूँ. You can't go away with reading 2 articles for sure. ठीक है, देखो only classes attend करना, I repeat, only classes attend करना is a waste of time. राइट अगर आप सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मेरा सजेशन होगा आप आज से प्रिपरेशन बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे आप कैट के अंदर कहीं पर भी 99.9 नहीं लाने वाले। राइट, हमने आपको जो पढ़ाया उसको जब आप कंसेप्चुअली टेस्ट नहीं करेंगे कि मेरा सही है या नहीं है, तब तक आप शायद कुछ अच्छा नहीं कर रहे। राइट, मैं स्टडी प्लानर के अंदर बात कर रहा हूं, सो यू नीड टू डिवोट एटलीस्ट टाइम ऑन रीडिंग, जो मैम बोल रहे हैं। तो रीडिंग में क्या, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग 2 आर्टिकल्स, राइट। सो 2 आर्टिकल्स जो हमारे को रीड करने हैं। अब इसके अंदर रीडिंग के अंदर नॉर्मल जगह से तो नहीं, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 99.9 की बात कर रहे हैं, एऑन हो गया, स्मिथसोनियन हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट एनवाई हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट एनवाई टाइम्स हो गया, और ये मैं काफी सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता ही। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के जो रोज के आर्टिकल्स हैं उसको पढ़ लो, और इंडियन एक्सप्रेस में से या मिंट में से 1-2 आर्टिकल्स वहां पढ़ लो। सो दिस, मैं अगेन जो बारी बारी बोलता हूं, दैट यू नीड टू बिल्ड द एफिनिटी टुवर्ड्स रीडिंग। आपको रीडिंग के वक्त तरफ जो है एफिनिटी डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज पॉइंट नंबर 1। आप पहले एफिनिटी डेवलप करें, आप पहले प्यार उत्पन्न करें, उसके बाद शादी होगी। राइट, सो आप पहले रीडिंग की वक्त एफिनिटी प्यार दिखाएं, तब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद आगे बढ़ेगा, 2 स्टेप वो भी लेगा और आपके क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने क्लासेस अटेंड कर दिया, आप रीडिंग कर रहे हो। राइट, मैं स्टडी प्लानर को थोड़ा बहुत ही ब्रॉड लेवल में बता रहा हूं। देखो, आपका स्टडी प्लानर कभी ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कई बार स्टूडेंट को जैसे स्टडी प्लानर की बात करता हूं, सर मैं 10 बजे उठूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, 11 से 12 ये करूंगा, 12 से 1 ये करूंगा, 1 से 2 ये करूंगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसा स्टडी प्लानर ना मैं बना सकता हूं, ना राखी मैम बना सकते हैं, ना अंकुर सर बना सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता है। आपको स्टडी प्लानर जो बनाना है, इट हैज टू बी वेरी प्रॉपर स्टडी प्लानर, सेइंग दैट कि मेरे को, लेट्स से आपका स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आपको स्टडी प्लानर कैसा बनाना चाहिए। मंडे को मैं क्यूए करूंगा, ठीक है, ट्यूसडे को मैं वीए करूंगा, मैं वेडनेसडे को एलआर करूंगा, ठीक है। मैं अभी की बात बता रहा हूँ, स्टडी प्लानर 2-3 महीने बाद चेंज होगा, मैं फिर बता देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्यूए करूंगा, फिर मैं यहाँ पर वीए करूंगा, और फिर मैं यहाँ पर कर दूंगा एलआर। सो पॉइंट इज, पहले मैं सब्जेक्ट्स मेंशन करूंगा, ठीक है।
अब क्यूए के अंदर मैं क्या करूंगा, क्यूए में मेरा परसेंटेज टॉपिक हो चुका है, मैं ये परसेंटेज टॉपिक की क्लास अगर रिवाइज करनी है तो कर लूंगा, अदरवाइज मैं मेक माई टेस्ट पे जाऊंगा। मेक माई टेस्ट में मैं परसेंटेजेस के क्वेश्चन देखूंगा, बेसिक वाले देखूंगा। मेक माई टेस्ट आप सबको पता होगा, ई कोचिंग का प्लेटफॉर्म है जब अपने हिसाब से टेस्ट बना सकते हो, ठीक है, इजी मीडियम हार्ड। तो मैं यहाँ पर पहले इजी टेस्ट देखूंगा, उसके बाद मैं परसेंटेज के मीडियम देखूंगा, उसके बाद मैं परसेंटेज के हार्ड लेवल टेस्ट करूंगा, ठीक है। ये 3 मेरे हो जाएंगे टेस्ट। मेक माई टेस्ट परसेंटेज के बाद मेरी परसेंटेज की शीट है जो मुझे ई कोचिंग की तरफ से मिली हुई है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। इसके बाद मेरे आएंगे डाउट्स, मैं उन डाउट्स को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने के बाद वहां स्टूडेंट्स आपस में खेलते रहते हैं और वहां से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वहां से भी नहीं मिल रहा है तो मैं फैकल्टी से बात करूंगा या मेरी डाउट सेशन में ये पूछूंगा। जब तक आप ऐसा प्लानिंग नहीं कर रहे तब तक आप ये समझ लेना आपका परसेंटेज कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर आपने सारे स्टेप्स कर लिए तो आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको रेगुलर प्रॉब्लम आ रही होगी, गलती हो रही होगी, उस गलतियों को आप एक सेपरेट नोटबुक के अंदर मेंटेन करें। ये नोटबुक आपकी कुंजी की तरह काम करेगी जब आप कैट के अंदर एग्जाम्स के पहले 15-20 दिन पहले प्रिपरेशन के लिए जा रहे होंगे। यहाँ पर आपके फॉर्मूला रहेंगे, यहाँ पर आपको वो दुख की कड़ियां होंगी जिन्होंने आपको परसेंटेज टॉपिक के अंदर परेशान किया था, ठीक है। वर्बल के अंदर तुम कभी ये नहीं बोल सकते मुझे आके, सर मुझे वर्बल में स्कोर नहीं आ रहा। सर मेरा वर्बल के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है, और वो भी स्पेसिफिकली जब मैं फिलोसफी रिलेटेड टॉपिक सॉल्व कर रहा हूं तब मुझे डाउट आ रहा है, उसका मैं क्या कर सकता हूं। तब मैं शायद आपको वो बुक दे पाऊंगा, जब आपको वो चीजें बता पाऊंगा कि आप फिलोसफी नाउ में से जाओ, ये चीजें पढ़ो, वो चीजें पढ़ो। तो यू नीड टू बी दैट मच स्पेसिफिक व्हाइल सॉल्विंग दिस थिंग, राइट। सो आपको ऐसी सब चीजें करनी पड़ेंगी। एलआर फॉर दैट मैटर, सर एलआर के अंदर मान लो मुझे सर एलआर डीआई के अंदर एलआर तो शायद हो जाता है, डीआई के अंदर सर मैं सेट भी समझ देता हूं, बट मेरा सर टाइम लग जाता है, क्या वो देना सही है या नहीं है। आपको ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे। सो यहाँ पर फिर आप जाएंगे, मैं अगेन ट्यूसडे को थोड़ा वो करके, आप ट्यूसडे के अंदर आपको क्या बोलना है, मैं सर बीआरसी करूंगा, क्या करूंगा, मैं मेक माई टेस्ट पे जाऊंगा और मेरा टारगेट है सर मैं 4 पैसेजेस सॉल्व करूंगा। मेरी रीडिंग भी हो रही है, 4 पैसेज सॉल्व हो रहे हैं, बट मैं इजी वंस करूंगा एज ऑफ नाउ। एलआरडीए में क्या करूंगा, एलआरडीए में अगेन जो राखी मैम ने करवाया या जो भी जयेश सर ने कराया उसको सॉल्व करूंगा। सो दिस शुड बी योर स्टडी प्लानर टू हिट 99 परसेंटाइलर। और ये प्लान हर महीने चेंज होगा, हर हफ्ते चेंज होगा, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्स। आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपको ये कंप्लीट करना है। एंड यू नीड टू एंश्योर दैट बाय लेट्स से जुलाई एंड और जुलाई एंड या फिर अगस्त मिड यू शुड बी स्टार्टिंग विद योर मॉक टेस्ट। अगर आप ये कर पा रहे हैं तब जाके आप 99 परसेंटाइलर की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया? ओवर टू यू राखी मैम, इफ यू हैव एनी अदर इनपुट्स टू गिव हियर। So we have time limit also, and yes, काफी questions अभी भी चल रहा है। So राखी मैडम, yes, मेरा जो next questions होगा, I think सर ने काफी यहाँ पे स्टडी प्लानर के अंदर डिस्कस किया है। आप भी सर, आप भी मैडम को ग्लिम्स दे सकते हो, बट माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज कि मैडम मॉक टेस्ट के बारे में आप प्लीज थोड़ा एलोबरेट करिए कि मॉक टेस्ट को कैसे लिखना चाहिए, कब से लिखना चाहिए, और उसके अंदर क्या एनालिसिस करना चाहिए, प्लीज। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट्स लाइक कि आप लोग यहाँ पे किसी रेस में मैराथन में दौड़ने वाले हैं, तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको अपना स्टैमिना समझना होगा कि आप जब मैराथन में दौड़ेंगे तो आप कितना दौड़ पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सीधा आप जाके मैराथन में तो मतलब दौड़ना स्टार्ट करते हो, आप पहले कुछ प्रैक्टिस करते हो, तो इट्स जस्ट लाइक द प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि कब से स्टार्ट करें। क्या मैं बोल दूं कि आज से स्टार्ट कर दो? क्या आप कंफर्टेबल हो आज से मॉक देने के लिए? मोस्टली 99% स्टूडेंट्स बोलेंगे नो, बिकॉज रीजन इज आपका सिलेबस नहीं हुआ है अभी, ठीक है। आपने अभी सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं। होगा क्या अगर आपका टॉपिक कवर नहीं है, आपका सिलेबस कवर नहीं है, आप वहां पे मॉक में बैठोगे तो क्या होगा, गिरोगे ना सीधा, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं पता कि परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं या फिर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं अभी पहले अपना जो सब्जेक्ट है, जो अपना सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको कवर करूंगा। एंड कम से कम जब मैं यहाँ पे 70 या 80% सिलेबस मेरा हो चुका है, अब ऐसा नहीं है कि 70-80% सिलेबस आप अक्टूबर में जाके कर रहे हो, ठीक है, नवंबर में जाके कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप अक्टूबर से पहले अगर इसको फिनिश कर लेते हो, देन यू कैन स्टार्ट योर मॉक्स। बिकॉज अगर आप अप्रोक्सीमेट आप 12 to 15 मॉक्स लिखते हो अगर अपने कैट एग्जाम से पहले, देन इट्स सफिशिएंट। बाकी तो मैक्सिमम इज नो लिमिट, बट एटलीस्ट आपको 12 to 15 मॉक्स आपको लिखनी चाहिए। 10 तो मिनिमम आपका टारगेट रखना
क्या है कि आपका सिलेबस एटलीस्ट यू कवर द 80 to 85% सिलेबस Madam, I think your voice is distracted, so please repeat it. Last yes, last statement को repeat करिए please. Yes, please confirm once my voice is clear to you. Yes, now it is fine, I think. हाँ, ओके ओके, मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ किया कि शायद बैंडविड्थ इशू हो रहा है। ओके, एनीवेज, तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट हाइजीन फैक्टर कि आपका कम से कम 75 to 80% सिलेबस हो चुका है और उसके बाद आप अपना मॉक स्टार्ट कर सकते हो एंड एटलीस्ट अटेम्प्ट 10+ मॉक बिफोर द कैट एग्जाम, ठीक है। लेकिन उसके जैसे हमें यहाँ पे एक चीज पे फोकस डालना चाहूंगी जो प्रशांत सर ने मेंशन किया था यहाँ पे, जो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, कंसेप्ट नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। उसको बस मैं नाम दे देती हूँ नोटबुक, जिसमें आपके पास फॉर्मूलाज होने चाहिए, आपके पास में वहां पे आपके डाउट्स होने चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम से पहले जाओ तो आप उसको रिवाइज कर सको। एंड मॉक आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप कैट की एग्जाम जा रहे हो, चाहे फिर आप नॉन कैट एग्जाम्स के लिए अपियर करने वाले हो, ठीक है। विदाउट मॉक इसका मतलब आप सीधा है कि आप मैराथन में दौड़ने जा रहे हो लेकिन आपने घर पे कभी भी दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं की है, उसका रिजल्ट क्या होता है वो सबको पता है, ठीक है। ये सर यस सो आई थिंक जो मैडम ने यहाँ पे डिस्कस किया, मैं उसके अंदर थोड़े और डिटेल में ले जाऊं कि मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रशांत सर ने जो यहाँ पे डिस्कस किया स्टडी प्लानर के बारे में, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विराट कोहली जब क्रिकेट खेलने जाते होंगे या तो आईपीएल के जो मैच खेलने जाते होंगे, आई कैन सी कि अभी वो लास्ट 2 मैच में 0 में आउट हो जा रहा है, तो अपन उसको कंसिडर नहीं कर रहे। बट मैं रियलिटी की बात करूं कि दोस्त कोई भी आप प्लेयर्स को ले लो या कोई भी सक्सेसफुल पीपल को ले लो, जिसने उनके पीछे क्या हार्डवर्क है दोस्त, वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। मॉक टेस्ट यू कैन थिंक कि बॉस 3 घंटे की मॉक टेस्ट आपको एट अ टाइम बैठ के लिखना होगा। एंड जो प्रशांत सर एंड मैडम ने जो डिस्कस किया कि ओनली टेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट गाइस, ओनली टेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको टेस्ट का एनालिसिस करना, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। आपको एनालिसिस पता होना चाहिए, माइन्यूटली एनालिसिस पता होना चाहिए दोस्त। आज के सेशन सुनने के बाद आपके अंदर एक आग लगेगी, आपको लगेगा कि सर तोड़ देंगे फोड़ देंगे हम कुछ कर लेंगे, लेकिन दोस्त 4 दिन के बाद आग शांत हो जाएगी। आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली शेड्यूल बनाना होगा, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, राइट। सो एक एक चीज को हमको यूटिलाइज करना होगा और उन तक ले जाना होगा। मॉक टेस्ट की मैं बात करूं, डोंट वरी, कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर फाइनेंशियली वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो दोस्त बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमएमटी इज फॉर यू। एमएमटी के ऊपर जाके आप बिल्कुल मॉक टेस्ट बना सकते हो, अनलिमिटेड टेस्ट यू कैन क्रिएट, 1000 ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो हमारे मेंटर्स ने बनाया हुआ है, एंड वो सारे टेस्ट के क्वेश्चंस यू कैन सिलेक्ट बेस्ड ऑन द हार्ड लेवल, इजी लेवल, मीडियम लेवल, जो भी आपको लगता है वो यू कैन सिलेक्ट एंड वहां से आप मॉक टेस्ट लिख सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, राइट। सो यस, थोड़ी आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। यस, वी हैव 10 to 15 मिनट्स। एक लास्ट क्वेश्चन में जो सभी स्टूडेंट का यहाँ पे आ रहे हैं उसको सर हम कंसिडर कर लेते हैं कि सर अभी फॉर एग्जांपल हम मॉक टेस्ट लिखेंगे, ये सारी चीज करेंगे, तो सर इसको कैसे करना चाहिए, इसके अंदर सर मेंटोर का क्या रोल रहता है, मेंटोर हमको क्या हेल्प कर सकते हैं, या तो सर कैसे इसको हम कवर करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज आल्सो क्रूशियल। कई बार आई हैव सीन एंड आई हैव लिसन फ्रॉम द मेंटोर्स कि केट की एग्जाम्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जाम के अंदर 66 क्वेश्चन वाज देयर। कंपलसरी नहीं है कि वो 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज जय माता जी करने से तो नेगेटिव हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, या तो सिलेबस के अंदर कौन सी चीज कवर करनी चाहिए और कौन सी चीज कवर नहीं करनी चाहिए, प्लीज ओवर टू यू गाइस। Okay, so अंकुर सर and for all the students here, see मैं कई बार ये क्लासेस के अंदर भी बोलता हूँ that आपको हमारी जरूरत कंटेंट पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आपके पास इतना कंटेंट YouTube वगैरह के अंदर पड़ा है, आप चाहें तो पूरी कैट की प्रिपरेशन वहां से कर सकते हैं। यू डोंट नीड अस, राइट, फॉर टीचिंग, राइट। आपको हमारी जरूरत कहाँ पड़ती है, अगर आप देखेंगे आपको हमारी जरूरत पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल इन मोटिवेशन, जो कि एक बहुत ही बेसिक सी नीड है कि सर हम स्टार्ट तो कर देते हैं बट कहीं ना कहीं बीच मझधार के अंदर छोड़ देते हैं। और मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि कैट जो है सिर्फ 20,000 स्टूडेंट लिखते हैं, 2 लाख नहीं, बिकॉज 2 लाख तो सिर्फ मात्र औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो द फर्स्ट थिंग इज अ कंटिन्यूस मोटिवेशन। और वो कैसे आता है, जब हम क्लासेस के अंदर जाते हैं, वी डोंट ओनली टीच, वी आर नॉट टीचर्स, वी आर मेंटोर्स।
और जब हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, वी टॉक अबाउट रीडिंग का इंपॉर्टेंस, वी टॉक अबाउट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस, वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस, वी टॉक अबाउट कैट का इंपॉर्टेंस, वी टॉक अबाउट एमबीए का इंपॉर्टेंस, एंड दिस इज व्हाट कीप्स द स्टूडेंट किकिंग. That is point number one. That's why you need mentors. Second, what you yourself said, अंकुर सर, कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वही चीज एक मेंटर का रोल प्ले करता है कि यहां जाके आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था. इस पैसेज के अंदर शायद मैं भी होता तो उन क्वेश्चन को छोड़ देता, या इस पैसेज के अंदर ये टाइम लगेगा. That's where you need the mentors. You need the mentors for guidance, right? आपको गाइडेंस के लिए करना है. पॉइंट इज, अगर कोई बच्चा वीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो प्रोबेबिलिटी पे शुरू हो गया, और मैं कई बार बोलता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग, सो पॉइंट इज, मैंने कई फैकल्टीज देखे हैं जो, आई थिंक राखी मैम विल एग्री विद दिस, जो प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं बिकॉज वहां पर वाओ इफेक्ट आता है. हाँ, बट वो वाओ इफेक्ट तो आ जाता है, बट पूरी जनता प्रोबेबिलिटी पढ़ती रहती है और पता लगता है हमारे को प्रोबेबिलिटी के 2 ही क्वेश्चन आते हैं. राइट. सो ये चीजों के लिए आपको मेंटर्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं. यू कैन गेट इन टच विद राखी मैम कि मेरा क्वांट्स के अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं. सो प्रोबेबली जो मेडिसिन राखी मैम कॉमर्स स्टूडेंट को देगी और जो मेडिसिन राखी मैम इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देगी वो अलग होगी. जो मेडिसिन मैं वर्बल के अंदर दूंगा सब लोगों को, वो अलग होगी. आप पेट दर्द की, बुखार की दवा एक जैसी नहीं ले सकते कि पीली गोली ले लो सब सही हो जाएगा. आपकी हर चीज की दवाई अलग होगी, हर मर्ज की दवा अलग होगी, और यहाँ पर आपको मेंटर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंटली आता है. ओवर टू यू राखी मैम. Madam, if possible, please switch off your camera. I think still your internet is lagging. Okay, so I think Rakhi ma'am might be having some disturbance. Rakhi ma'am, am I audible? Yes, sir. आपकी तरफ से वॉइस क्रैक हो रहा है मैम, एक बार चेक करेंगे. नो मैम, क्रैक हो रहा है वॉइस. एक बार आप या तो लॉग आउट करके लॉग इन करो, हो सकता है सही हो. राइट. सो आप एक बार या तो एग्जिट करके वापस एंटर हो जाइए. वो हिंदुस्तानी जुगाड़ है सर, कहीं पे भी हमारी गाड़ी अटक जाए तो बंद करके चालू. till the time राखी मैम join in. So point is, हम लोग जो बात कर रहे थे मोटिवेशन के लिए, और राखी मैम अपना कुछ इनपुट्स दें. So आपको एक कंटिन्यूस मेंटर्स इसलिए चाहिए. So जब हम मेंटरिंग करेंगे, so मेंटरिंग के अंदर what I do, right, we'll get into one-to-one mentoring. We'll talk about your areas of interest, we'll talk about your strength, we'll talk about your weakness, we'll talk about your hobbies. Because the point is, जब हम ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू के अंदर भी जाएंगे, so I should know that नेहा मोदी का क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है. I should know, let's say निशिता क्या कर रही है. I should know शिवम तिवारी क्या कर रहे हैं. And this is what it will help you. And when you maintain a touch with your mentors, ये आपको उस तरीके से गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. So you need us for mentoring this thing, कि हमें यहाँ पर हेल्प दे दो, करना क्या है. राइट. कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल है, और डोंट गेट इनटू अ जनरलाइज दिस थिंग. देयर इज अ स्पेसिफिक दिस थिंग. हर मर्ज की दवा अलग है. ठीक है. ओवर टू यू अंकुर सर. Yes, sir. My voice is clear. Yes मैम, बोलिए. हाँ, ओके. सो हम लोग बात कर रहे थे कि मेंटर्स की जरूरत क्यों होती है. जैसे सर ने बोला कि मोटिवेशन की. सर मैं हर साल, मतलब स्टूडेंट्स में हर साल ऐसा देखती हूँ कि जब स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में होता है तो उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है. दैट मीन्स मैं अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो वो आई एम बैंगलोर भी नहीं बोलता. आई डोंट नो व्हाई. आई एम अहमदाबाद होता है, सीधा आई एम अहमदाबाद. अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट सोच रहा है. लेकिन आई डोंट नो कि लास्ट में आते 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 क्या होता है कि जून जुलाई तक सीमेट का एग्जाम आ जाता है माइंड में, और अगस्त तक आता है मैट का एग्जाम आ जाता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा. क्यों ऐसा होता है? क्लास में अगर स्टूडेंट 60 एनरोल होते हैं, या फिर 60 स्टूडेंट, मतलब मैं पर्टिकुलर किसी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मेरे क्राउड में 60 स्टूडेंट ने सोचा कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन 20 या 10 स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं कि जिनका लेवल सेम होता है, जो सेम एनर्जी के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं. ये हम हर साल देखते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे मोटिवेट नहीं रह पाते, वो अपने मेंटोर के कांटेक्ट में नहीं होते. उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, वो खुद से कर लेंगे, और वो खुद से डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो सबसे बड़ा फैक्टर है मोटिवेशन. ठीक है. तो जिस एनर्जी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी प्रिपरेशन, वही एनर्जी आपके एंड तक रहे. वो ये रोल होता है मेंटर का. सेकेंड थिंग होती है कि जैसे सर ने बोला कि टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना. जैसे सर ने बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया था पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का. अक्सर नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है यार मेरा एरिया नहीं है, मैंने कभी पीएनसी प्रोबेबिलिटी किया, तो क्यों करना है?
एक क्वेश्चन पिछले 3 साल से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में, जबकि उसमें हमारे 10 दिन वेस्ट हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि यार उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कभी कोई 5 मैन सेलेक्ट करने, 4 मैन करने, तो क्यों करना मुझे उस एक क्वेश्चन के कंपनसेशन में। अगर मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लेता हूँ, जो मेरा टॉपिक शायद से पीएनसी प्रॉब से इजी, और जिससे 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन पिछले 2 सालों से मैं देख रही हूँ, उससे पहले भी उसके 2 to 3 क्वेश्चन हर बार उसमें आ रहे हैं। एंड नॉट ओनली इन द कैट एग्जाम, नॉन कैट एग्जाम में भी टीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि वो इजी है कंपैरेटिवली आपका पीएनसी एंड प्रॉब से। तो सेकंड थिंग है कि आपको टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझा पाए कि आपका मेंटोर। थर्ड थिंग होती है, बच्चे अगर आप कैट के एग्जाम फिल कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता, आपके 99 परसेंटाइल आ गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से कॉलेज का फॉर्म फिल करना है, कौन सा नहीं। जैसे इस बार का मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी उस स्टूडेंट का फॉर द प्राइवेसी मैटर, ठीक है। उसने क्या, उसका एनमेट में आप यकीन नहीं मानोगे 245 स्कोर था, बट ही डिडंट फिल द एनएमआईएमएस फॉर्म। जस्ट उसने एनमेट का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, ठीक है, वो कोचिंग नहीं कर रहा था, जस्ट लिंक्डइन के थ्रू मुझसे कनेक्ट था, ठीक है, एनमेट दे दिया है। लास्ट में उसका जब स्कोर आ जाता है, उसको पता चलता है कि एनएमआईएमएस का फॉर्म भरना तो भूल ही गया, भूला नहीं, उसको मालूम ही नहीं था कि फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आफ्टर स्कोरिंग अ गुड परसेंटाइल इन एनमेट एग्जाम, उसके हाथ से एनएमआईएमएस चला गया, ठीक है। या फिर उसने एनमेट का फॉर्म फिल किया था, उसको पता था कि उसके थ्रू केजेस सोमैया भी मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी आपका मेंटोर आपकी हेल्प करता है कि कौन सा कॉलेज आपको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीडीपीआई प्रिपरेशन। आप 99.99 परसेंटाइल ले आना, लेकिन अगर आप अच्छा एसओपी नहीं लिख पाते हो, आप अच्छा जीडीपीआई परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ठीक है, तब आपके वो 99.99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल वेस्ट है, आपका पूरा ईयर वेस्ट हो गया। तो उसकी प्रिपरेशन में भी लाइक आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी एंड व्हाट यू हैव टू डू बिफोर सिलेक्टिंग एनी कॉलेज और आपका स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, बट ये मेरे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपका मेंटर्स आपकी हेल्प करेगा। ये सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैडम, जो आपने बोला ना कि फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट होता है एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके अंदर वो डाउन होना चालू हो जाता है कि और लास्ट में पता चलता है। मैं तो मैडम उसके अंदर और एक स्टेप आगे जाऊंगा कि एग्जाम हॉल के अंदर वीआरसी का सेक्शन चालू होने के बाद बच्चे सोचने लगते हैं एलआरडीए तक पहुंचने में कि बॉस मेरे से नहीं होगा, और एलआरडीए के बाद भी आई हैव सीन के मोर देन 50% स्टूडेंट शायद अपनी सांसें तोड़ देते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ना संघर्ष ना तकलीफ तो दोस्त क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी होती है सीने में दोस्त। वो पावर पैक सेशन चाहिए, वो एनर्जी चाहिए और रिप्लाई चाहिए। तो ठोको ताली इन द चैट बॉक्स जो आपको लग रहा है कि बॉस ये आपके लिए जरूरी है, वो आग लगानी होगी दोस्तों, आग लगानी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे ही नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख बच्चे गेट के फॉर्म फिलअप करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनली 20,000 स्टूडेंट जो आपके साथ रियल में फाइट कर रहे होंगे। इतना इजी होता 20 लाख 25 लाख का पैकेज ऐसे पेड़ पे तोड़ने से हाथ में आ जाता होता दोस्त, तो ये सब चीज की जरूरत नहीं थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको लगता होगा जो मैडम की बात बता रहे कि सर ऐसा क्यों होता है कि लास्ट तक बच्चे सांसें तोड़ देते। यू कैन थिंक, यू कैन रिकॉल योर ग्रेजुएशन दोस्त। पहले सेमेस्टर के अंदर पहला दिन याद करो आपके कॉलेज के अंदर, हम भगवान के सामने मंदिर के अंदर घंटा बजा के सामने खड़े रहे थे भगवान के सामने कि पहले दिन से मेहनत करेंगे। हर सेमेस्टर की एग्जाम में आपकी हालत टाइट हो जाती होगी एंड आफ्टर द एवरी सेमेस्टर आपने देखा होगा कि फर्स्ट दिन के दिन आप भगवान के सामने मंदिर में खड़े होकर सोचते होंगे कि इस सेमेस्टर में मैं पहले दिन से मेहनत करूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ होगा। मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट था, शायद आप मेरी बात को कनेक्ट कर पाते होंगे। गाइस रिप्लाई इन द चैट बॉक्स जो आपको लगता होगा मैं रिलेटेड बात बता रहा हूँ। प्लीज प्रशांत सर लास्ट में कुछ आप मोटिवेशनल थॉट्स दे सकते हो तो प्लीज। ओके, सो थैंक यू अंकुर सर। आपसे ज्यादा मोटिवेशन तो खैर मैं और राखी मैम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके जो हम शेर व शायरियां सुनने के लिए वैसे भी एकदम इम्प्रेस रहते हैं। So guys, I think more or less this is what we just want to share with you guys, that stay motivated and just focus on your preparation. Stay hungry. You have to stay hungry. When I'm talking about stay hungry, अगर आप 50% ला रहे हैं, stay hungry for 90. आप 95 लेके आ रहे हैं, stay hungry for 99. आप 99 लेके आ रहे हैं, stay hungry for 99.5. You have to stay hungry, right? So इसलिए बोलता हूं hunger is an idea.
right? So stay hungry, go with this idea, and I'm telling you, you will sail any boat, whatever there is in your life. And मैं last चीज जो बोलना चाहूंगा, not the least, I don't know आप जो सपना लेके आए हैं वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, बट आपको कैट एग्जाम के बाहर आके ये जरूर बोलना है, मैंने मेरा 100% दिया और ये मेरा 100% का रिजल्ट है। अगर वो आप बोल सकते हैं तो इसका मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन के साथ एकदम अच्छी तरीके से जस्टिस किया। So with these words, I want to thank everyone. Over to you, Ankur sir and Rakhi ma'am, if you want to add on anything, ma'am. Rakhi madam, please. And then हाँ. I have very good announcement in the last. So please, madam, आप पहले complete कर लीजिए। ये सर जैसे सर ने बोला ना कि 100% अपना दीजिए, बाकी जो भी होता है। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे एक बात याद आती है, आज तक याद आती है, और वो मैंने अप्लाई भी की अपनी लाइफ में। वो एक मेरे टीचर थे, वो बोलते थे कभी भी लाइफ में काश और शायद मत रखना। अगर आपकी लाइफ में काश और शायद है तो फिर आपकी लाइफ वेस्ट है। मतलब आप अपना 100% दो ना। देखो, हर किसी को IIMs नहीं मिलता, ये सच्चाई है। हर कोई IIM बैंगलोर या अहमदाबाद में नहीं जा सकता, वो भी सच्चाई है। अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉलेज, लाइक मैं खुश हूँ NIT में जाके, एक बच्चा खुश नहीं है IIT में भी जाके, ठीक है? तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन काश मैं कर लिया होता तो शायद आज यहाँ होता, ये अगर आपकी लाइफ में है तो आपकी मेहनत में कमी है। आप अपना 100% दो। जैसे सर ने बोला, एग्जाम हॉल से बाहर आके ये फील नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा प्रिपरेशन में थोड़ा सा मेहनत और इधर उधर कर लिया होता तो शायद से मैं आज ऐसा हो जाता। तो प्लीज अपना 100% दो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो, बाकी तो रब दे हवाले है, जो भी होना है, ठीक है? बस यही है सर। तो मतलब मोटिवेटेड रहो और हर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन। और प्लीज अगर अपनी लाइफ को देख लो, आपको ओला ऑटो में जाना है या फिर खुद की ऑडी में जाना है, डिसाइड कर लो, आपके हाथ में आपका लाइफ। यस यस, सो आई थिंक शार्क टैंक देखने के बाद तो हम सब काफी मोटिवेटेड है सारी चीजों के लेके। एंड थैंक्स फॉर द योर वैल्यूएबल टाइम, प्रशांत सर एंड राखी मैडम, रियली थैंक्स फ्रॉम द ऑल बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ई कोचिंग, राइट? एंड यस, वी विल एक्सपेक्ट कि सर आप जब भी आपके पास टाइम होगा, और डेफिनेटली वी विल अरेंज द वंडरफुल सेशन। एंड आई थिंक इनसे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलता है, कोई पेस मिलता है कि जहां पे हमारे जो ड्रीम्स है उस तक हम उसको ले जाते हैं, राइट? And the last and very important announcement from my side is guys कि आपको पता होगा, वैसे भी प्रशांत सर ने और सारे मेंटर्स ने कई बार क्लास के अंदर भी अनाउंसमेंट किया होगा गाइस, लास्ट बैच जिसके अंदर वी विल कंप्लीट ऑन LRD एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीन सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। उसकी बैच, लास्ट बैच ऑलरेडी चालू हो चुकी है। यस्टरडे 8 ओनली सीट अवेलेबल थी। प्लीज गाइज, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा। एंड इफ पॉसिबल सलोनी मैडम या कल्पेश सर कोई यहाँ पे है तो गाइज प्लीज एडमिन टीम या तो जो ऑपरेशन टीम है उनका नंबर शेयर कर दीजिए। आई विल शेयर माय पर्सनल नंबर डेफिनेटली। कहीं पे भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज गाइज कॉन्टेक्ट करिए एंड चेक कोई भी बैच अवेलेबल है। एट द 10,000 रुपीज ओनली यू विल गेट द एंटायर गेट प्रिपरेशन। दोस्त मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इनसे अच्छा और इनसे अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं मिल सकता, वो मेरी गारंटी है। विद दिस मेंटोर जो आपके सामने अभी यहाँ पे है, वही फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, वही आपका पर्सनल गाइड मेंटर करेंगे। यू कैन टॉक विद द मेंटोर्स, यू कैन डिस्कस विद द मेंटोर्स। प्रशांत सर एंड ऑल इज द को-फाउंडर, आप उसके साथ भी बात कर सकते हो। शायद मौका आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बाकी कोई लोग अच्छे होंगे नहीं पता, बट 10,000 रुपीज के अंदर दिस इज द रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शंस। इफ यू थिंक कि आपको लगता है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट, राइट? So with that words, guys, I am requesting to everyone, please, we require your feedbacks and please, आपका जो भी valuable feedbacks है आप chat box के अंदर दे सकते हो। आपका feedback सिर्फ हमको ही दिखता है। आपको अच्छा बोलना है, तारीफ करना है, गालियां देना है, जो भी करना है you can do। तो प्लीज आपका feedback देके जाइए। Your feedback is very very important for us। आपकी तालियां, आपकी तारीफ, आपकी बातों से हमारी सांसें चलती है दोस्त। So everyone, please put the chat box with your words and yes, you can go for the lunch, right? एंड टेलीग्राम की लिंक मैंने चैट के अंदर डाल दिए गाइस। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप रेगुलरली। प्रशांत एंड ऑल मेंटोर्स कमिंग देयर, दे आर डिस्कसिंग एंड दे आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके प्रिपरेशन के अंदर होगी वो शायद वहां पे अपलोड करते हैं। सो यस, डेफिनेटली दैट इज अ वंडरफुल स्कोप कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। मजे की बात फ्री में है दोस्त, लुटते रहिए। यस प्रशांत सर।
Okay, thank you everyone. Thanks everyone for listening to us, and I hope the information might be useful for you guys. Thank you. Thanks everyone. Stay blessed, stay happy, and enjoy your Sunday. Thank you, Rakhi ma'am. Thanks a lot for attending the session, ma'am. Thank you. Thanks, Thank you, everyone. sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. And Ankur sir, thank you for being the lovely host. Thank you. Thank you everyone. Please guys, yes, definitely we are going to complete the session here, right? So with your words Yes. and with your feedback, sir आपके पास कोई अच्छे feedbacks आते हैं तो definitely sir share with us. So हम आगे ऐसे sessions arrange करने चाहिए या नहीं करने चाहिए उसके ऊपर decision लेंगे, right? So Sure. yes, इरम सिद्दीकी बेटा प्लीज मैं मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ, you can connect. Yes, Prashant and Rakhi madam, if you wish you can. Okay, sir. Thank you so much. I have shared my personal mobile number, guys. Anytime, anything you want to discuss with me in terms of finance, आपको लग रहा है कहीं पे भी कोई भी challenges है, don't worry, एक बार घंटी घुमा देना, हो सकता है उतनी मदद मैं कर दूंगा, ठीक है? So don't worry about that. जो भी चाहिए, जो भी जैसा भी होगा, please talk to me. एक बार एटलीस्ट बात करना, हो सकता है मैं क्लास में या कहीं पे बिजी हूँ तो शायद आपका फोन ना उठा पाऊँ. व्हाट्सएप इज ऑल्सो प्रेफरेबल. यू कैन पिंग मी एनी टाइम, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? रात को 2 बजे परेशान मत करना, बाकी आप कभी भी फोन कर सकते हो, राइट? सो जो भी बेस्ट ऑफ होगा आई विल डेफिनेटली ट्राई. तो आपका जो भी क्वेश्चन है, आपको लगता हो कि शायद मैं यहाँ पे नहीं पूछ पाया था और अभी भी आपको पूछना है, सो डेफिनेटली यस पूर्णिमा, वहां पे सारी प्रिपरेशन, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड ईच एंड एवरी टॉपिक जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, दिस इज नॉट अबाउट द क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 100% फुल बेच की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एलआरडीआई एंड वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ कवर होगा, राइट? ओके गाइस, थैंक यू, सी यू सून. मिलेंगे बहुत जल्दी अगले आने वाले सेशन के अंदर. एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज दोस्त कर लेना, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय.